Good morning students. We are going to start our exercise of chapter Our Environment. Okay student, which is your chapter number 5. Now first question, which of the following group contain only biodegradable items? आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा biodegradable item है. That is your C and D. That is fruit peel, cake, lime juice, cake, wood and grass. ये आपके C और D क्या हैं? That are biodegradable. Now विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन, यानी किसे मिला करके फूड चेन बनता है. दैट इज योर बी, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन. ये एक फूड चेन को ये फॉर्म करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इसमें से क्या क्या हैं? कैरिंग क्लॉथ बैग to put purchase in while shopping, switch off unnecessary lights and fans. C. Walking to school instead of getting your mother to drop you on her scooter. All of the above, that is your right answer. Now fourth question is that what will happen if we kill all the organisms on the trophic level. अगर हम सभी को हम किल कर देते हैं ट्रॉफिक लेवल के तो क्या होगा? If we kill all the organisms in one trophic level, the transfer of food energy to the next trophic level will stop. This will cause a break in the food chain resulting in ecosystem imbalance. It means it will create ecosystem imbalance. As a result, the organisms of the higher trophic level will also die. Also, individuals of lower trophic level will exhibit enormous growth in their population, but the condition will result in ecological upset. यानी completely अगर देखा जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? Ecological imbalance create हो जाएगा. Now, fifth question, will the impact of removing all the organisms in a trophic level be different for the different trophic level? Can the organism of any trophic level be removed without causing any damage to the ecosystem? Yes. Okay, the impact of removing all the organisms in a trophic level will be different for different trophic levels. If all the producers are killed, it will cause death to the migration of all the primary consumers in the ecosystem. In the absence of producers, subsequent level of consumer will also be affected. But if primary consumers are removed, organisms of higher trophic level will die. Okay, अगर आपके प्राइमरी कंज्यूमर अगर समाप्त होते हैं, डेथ उनकी होती है, तो हायर ट्रॉफिक लेवल के भी फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि वो किन पर आधारित होते हैं? आपके प्राइमरी कंज्यूमर पर. ओके, वाइल दोज ऑफ लोअर लेवल सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मच बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉफिक लेवल विल अपसेट द होल इकोसिस्टम ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड थ्रू फूड चेन. क्योंकि सभी फूड चेन से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए कंप्लीट फूड चेन को ही यह डिस्टर्ब कर देगा. द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स वन ट्रॉफिक लेवल डिपेंड अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ अदर ट्रॉफिक लेवल. यानी एक ट्रॉफिक लेवल का दूसरे ट्रॉफिक लेवल के मेंबर के आधार पर सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं. ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज दैट what is the biological magnification? Will the level of this magnification be different at different level of the ecosystem? biological magnification किसे कहते हैं? क्या वह different level पे अलग अलग होता है? Progressive increase in the concentration of non-biodegradable substances in a food chain is called as biological magnification. The level of the harmful substances will go on increasing from
ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, यानी एक से दूसरे लेवल पर ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसकी क्या हो जाती है, सब्सटेंस हार्मफुल सब्सटेंसेस की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। व्हेन सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर द फूड चेन एट the level of primary producer, they get concentrated many times at the each subsequent trophic level, यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब वो पहुंचता है तो उसका कंसंट्रेशन हार्मफुल प्रोडक्ट का और बढ़ते जाता है। नाउ 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो क्रिएट करते हैं वेस्ट, उसका क्या उसका असर पड़ता है। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, देयर वॉल्यूम कीप ऑन इंक्रीजिंग creating the problem of their safe disposal. Some of the non-biodegradable waste likely heavy metal and pesticide enter into the food chain and increase in the upper trophic level. Non-biodegradable waste reduce the soil fertility by changing the pH balance. Okay, इस तरीके से देखा जाए तो ये जब इसकी मात्रा धीरे धीरे सॉइल पे बढ़ती है तो सॉइल का पीएच लेवल चेंज होता है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। इसके साथ साथ ये वेस्ट पूरे कंप्लीट इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ी ये समस्या क्रिएट करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, यानी जो भी वेस्ट जनरेट हो रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, क्या इनका इन्वायरमेंट पर कोई असर होगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस themselves and provide raw material for producers, but they are also have adverse effect on the environment. पहली बात तो वो एक तरीके से वो ब्रेकडाउन उनका तो हो जाता है, लेकिन फिर भी इनका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ फॉल स्मेल हार्मफुल गैसेस when inhaled by human being. They may cause irritation, nausea and giddiness. Okay, जब स्लो डिकम्पोजिशन होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का तो इससे इरिटेशन, गिडीनेस यानी चक्कर आना, दम घुटना, इस तरीके से समस्या और इसके साथ साथ इरिटेशन भी क्रिएट होता है। डिकम्पोजिशन वेस्ट प्रोवाइड्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। ओके, abundance of harmful microorganisms may cause disease in the animals, plants and human beings. देखिए ये जब इनकी संख्या बढ़ती जाती है तो इनके डिकम्पोजिशन से क्या होता है कि वहाँ पर डिफरेंट हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स यानी डिफरेंट बैक्टीरिया और ये सब उसमें जनरेट हो जाते हैं, एक तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे, और ये डिफरेंट टाइप के डिजीज़ को भी ये क्रिएट करने का काम करते हैं। Increase in the number of microorganisms in aquatic medium will cause the oxygen deficiency in water bodies. Okay, अगर water bodies में ये पड़ते हैं और इनकी वजह से क्या हो जाता है, इनके डिकम्पोजिशन से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो भी ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे पाए जाते हैं उनकी डेथ होने की चांसेस मैक्सिमम हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, why is damage to the ozone layer cause of concern? What steps are being taken to limit this damage? Okay, ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं उसको लिमिट में करना क्यों ज़रूरी है। ओके, ओजोन लेयर इज़ द प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड द अर्थ. इट प्रिवेंट्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस of the sun from reaching the earth. Air pollutants likely chlorofluorocarbons are causing depletion of ozone layer. This is the allowing greater amount of UV radiation to reach the earth. Okay, ये क्या होती है, ओजोन लेयर हमारी अर्थ पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में काम कर रही है. इसके कारण जब ये ओजोन लेयर डिप्लीशन होने से क्या हो रहा है, यूवी रेज अर्थ पर पहुंच रही हैं. यूवी रेडिएशन कैन अपसेट द इकोसिस्टम बाय अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट में ये फोटोसिंथेसिस को ये अफेक्ट करते हैं. डिस्ट्रॉइंग प्लैंक्टन्स एंड डिकम्पोजर्स, और जितने भी प्लांट्स छोटे प्लांट्स पाए जाते हैं किसी वाटर बॉडीज़ में वो भी अफेक्टेड होते हैं. इसके साथ साथ डिकम्पोजर्स भी उनकी डेथ हो जाती है. इन ह्यूमन बीइंग यूवी रेडिएशन में कॉज स्किन कैंसर, ह्यूमन बीइंग में स्किन कैंसर हो जाता है. कैटरैक्ट ऑफ आइज
यानी मोतियाबिंद हो जाता है। डैमेज द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को भी ये डैमेज करने का काम करते हैं। सेवरल डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग नेशंस of the world have agreed to sign the obey the directions by TINEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम को बहुत सी कंट्रीज़ ने साइन किया है, सो दैट टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ CFC और टू लिमिट दियर प्रोडक्शन टू द सेम एक्सटेंट। यानी उस पर सिग्नेचर करने के बाद मैक्सिमम कंट्रीज़ क्या कर रही हैं कि कम से कम CFC रिलीज करने के लिए वो बाध्य हो रही हैं, जिससे हमारी कंट्री को पूरे वर्ल्ड को इतनी बड़ी समस्या ओजोन लेयर की जो ये डिप्रेशन की समस्या है उससे बचने का भी मौका मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम सब्सटेंसेस, व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ऐसा क्या कारण है उसका। ओके, सम सब्सटेंसेस विच आर डिग्रेडेड एंड break down into simpler substances by the microorganism are called as biodegradable substances। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो भी सब्सटेंसेस सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे कॉटन, वुड, पेपर, वुल एक्सेट्रा। Substances that do not degrade or break down into simpler substances by the action of enzymes secreted by the microbes are called non-biodegradable substances। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से जो भी उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट, जो भी थिंग्स सिंपलर फॉर्म में नहीं चेंज की जाती हैं उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, DDT एक्सेट्रा। ओके, नाउ second question, give any two ways in which biodegradable substances would affect the environment। okay, biodegradable substances दो तरीके आपको बताने हैं कि किस तरीके से वो environment को affect करते हैं। during decomposition process the biodegradable substances fall smell। okay, उससे दुर्गंध उत्पन्न होता है। some harmful gases are released, कुछ harmful gases भी उससे रिलीज होते हैं, which make pollution for the nearby living person, और इस तरीके से उसके आसपास रहने वालों के लिए वो समस्या क्रिएट करते हैं। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटो, इंसेक्ट्स एंड माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज लाइक कॉलेरा एंड डायरिया। जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो उस पर ब्रीडिंग करने के लिए डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका मॉस्किटो और इंसेक्ट हैं, उनके लिए वो प्लेस क्रिएट करता है जिससे कॉलेरा और डायरिया जैसा रोग उत्पन्न होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 that is your give any two ways in which non-biodegradable substances would affect the environment। okay, नॉन बायोडिग्रेडेबल, अभी तो आपने बायोडिग्रेडेबल पढ़ा, नॉन बायोडिग्रेडेबल किस तरीके से अफेक्ट करेंगे। केमिकल्स लाइक BHC एंड DDT इंक्लूडिंग कार्सिनोमा यानी मसल कैंसर एंड ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। यानी जो BHC है और DDT है इनसे कार्सिनोमा होता है, मतलब मसल्स में कैंसर क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, जिससे किसका ट्यूमर बनना प्रारंभ हो जाता है। हैंडलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल मे कॉज स्किन, रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। ओके, इनसे ये भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी और स्किन और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी क्रिएट होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज डू नॉट डिकम्पोज इजीली, सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। ओके, क्योंकि वो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं इसलिए ये लैंड और वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं ना। पेज नंबर 261 क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल, गिव एन एग्जाम्पल of a food chain and state the different trophic level in it। okay, the various step in food chain at which transfer of food energy takes place are called trophic level। मतलब एनर्जी जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में ट्रांसफ़र होती है उसे हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। फूड चेन ऑपरेटिंग इन ग्रासलैंड दैट इज योर ग्रास दैट इज योर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इंसेक्ट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, frogs are third trophic and birds are fourth trophic level। okay, now second question is that what is the role of decomposer in the ecosystem। decomposers का क्या रोल होता है? very simple,
Decomposers are microorganisms that act on dead and decaying bodies of the producer and consumers and break them into simpler organic compounds. Okay, इनका काम क्या होता है? जो भी डिफरेंट जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनका काम ये होता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या ह्यूमन बीइंग हो, उनकी बॉडी को ब्रेक डाउन करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करने का इनका काम होता है. दे एब्जॉर्ब सम ऑफ द सब्सटेंसेज एंड रिलीज द रेस्ट इनटू द इन्वायरमेंट टू रिसाइकल एंड टू बी यूज्ड इन फ्यूचर बाय प्रोड्यूसर्स. कुछ तो वो इस्तेमाल कर लेती हैं और बाकी ये इन्वायरमेंट में वापस दे देती हैं ताकि नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स उसे यूज कर सकें. Thus decomposers have a key role in recycling of material in biosphere. Okay, बायोस्फीयर में मटेरियल्स की रिसाइकलिंग करने में इनका बहुत ही रोल अदा करते हैं. ये प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू द प्रोड्यूसर्स. इन्हीं के कारण जो भी प्लांट्स होते हैं उन्हें रॉ मटेरियल मिलता है. सो इन दिस वे दे मेक द सॉइल फर्टाइल. ओके, और ये इस तरीके से सॉइल को फर्टाइल करने में मदद करते हैं ना. दैट इज योर पेज नंबर 264, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द ओजोन एंड हाउ इट अफेक्ट द इकोसिस्टम. ओके, ओजोन इज द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ओजोन इज अ डेडली पॉइजन. हाउएवर एट द higher level of the atmosphere, ozone perform an essential function. It seals the surface of the earth from the ultraviolet radiation from the sun. वैसे एक्चुअली देखा जाए तो ओजोन का जो होता है O3 इसका फार्मूला होता है और ये बहुत ही पॉइजनस होता है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में जो इसकी लेयर पाई जाती है, यह लेयर क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आने से रोकता है. द radiation is highly damaging to the organism. For example, it is known as cause of skin cancer, cataract, damage of immune system in human being. It also destroy plant and reduce photosynthesis process. यानी इस तरीके से देखा जाए तो ये ह्यूमन बीइंग में स्किन कैंसर, कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद और इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करने और इसके साथ साथ प्लांट में फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस करने का काम करता है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? गिव एनी 2 मेथड. आप किस तरीके से वेस्ट डिस्पोजल में आपको रिड्यूस करने में कैसे मदद करेंगे? बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ डिस्पोजल आइटम एंड प्रोमोटिंग द यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड आर्टिकल. ओके, डिस्पोजेबल आइटम का यूज कम करेंगे और इसके साथ साथ उसको रिसाइकलिंग में भी भेजने का काम करेंगे. सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिफोर डंपिंग देम. ओके, अब हम 2 तरीके का अपना डस्टबिन बनाएं जिसमें बायोडिग्रेडेबल को अलग रखें, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग करके सेपरेटली रखें. रिसाइकलिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल. और जितने आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उन्हें रिसाइकलिंग के लिए उसे कबाड़ जंक डीलर को हमें दे देना चाहिए ताकि वो रिसाइकल्ड होकर के वो वापस आ सके. ओके, दैट्स ऑल in this chapter. Thank you.